أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سورة الكهف آية نمبر 32. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور ذرا ان کے سامنے مثال بیان کیجئے دو آدمیوں کی. جعلنا لأحدهما جنتین، ان دونوں کے لیے ہم نے دو باغ بنائے، یعنی دونوں کا ایک ایک باغ تھا. من اعناب، انگوروں کے. وحففناہما بنخل، اور ان کو گھیرا ہوا تھا ہم نے، یعنی باغ جو ہے وہ اصل میں انگوروں کے تھے لیکن سائڈز پہ یعنی آس پاس جو ہے اس کے بنخل، کھجور کے درخت ہے. اور کھجور کا درخت آپ کو پتہ ہے اسٹرانگ، یعنی ایک علامت ہے اسٹرانگ درختوں میں سے. اور دوسری طرف اناب جو ہے یعنی انگوروں کی، آپ کو پتا ہے کہ خوشے ہوتے ہیں، بیلیں ہوتی ہیں جو کہ کمزور ہوتے ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے یعنی آس پاس سے کھجور کے درختوں کو وہاں پر لگایا گیا تھا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان دونوں کھیتوں کے درمیان ہم نے دونوں باغوں کے درمیان ہم نے کھیت بنائے ہوئے تھے، یعنی باغ بھی تھا اور کھیتی بھی تھی، دونوں طرح سے فائدہ ملتا تھا. اب یہ جو دونوں آدمی ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے زمانے کے آدمی تھے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ کافر تھا اور ایک مومن تھا. اور ہمسائے تھے، قریب قریب تھے. اور ظاہر ہے جب باغ اکٹھے تھے، زمین اکٹھی تھی، تو ایک دوسرے سے آمنا سامنا بھی ہوتا تھا. یہ جو مثال ہے بڑی امپورٹنٹ مثال ہے، اس لیے اس کے اوپر بہت دھیان کرنا چاہیے. کلتل جنتین، دونوں باغوں نے آتت اکلہا، اپنا پھل دیا. ولم تظلم منہ شیئا، اور دونوں میں سے کسی میں بھی کمی نہیں ہوئی، یعنی دونوں باغ خوب پھل دیتے تھے اور کسی طرح سے بھی کمی نہیں آتی تھی. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان دونوں باغوں کے بیچوں بیچ پانی کی یعنی ترسیل کے لیے، پانی پہنچانے کے لیے ایک نہر ہم نے بنا دی. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اوپر بھی ہم نے گھیر لیا. حالانکہ اب آپ دیکھیں بظاہر تو انسان ہی یہ حکمتیں کرتا ہے اور یہ والے ہیلے کرتا ہے، ترکیبیں لگاتا ہے کہ کیسے اس کی کھیتی محفوظ رہ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اصل میں. اور اسی طرح ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان میں کھیتی بنا دی. ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ کس سے لنکڈ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اگر اللہ نہ چاہیں تو کچھ بھی کام انسان سے کسی بھی طرح کا نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ دیکھیے ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان نہر جاری کر دی. سورۃ الکہف میں جہاں اصحاب کہف کا آپ پیچھے واقعہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور توحید کے اوپر ایمان، اور اس کے بعد پھر اس کے معجزے ہم نے دیکھے کہ جو ایمان رکھتا ہے صحیح معنوں میں توحید پر، اللہ تعالیٰ کیسے اس کو جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں رتبے عطا کرتا ہے، اس کا نام ختم نہیں ہونے دیتا، اس کو مٹنے نہیں دیتا. جو اللہ کے واسطے دنیا سے دو قدم پیچھے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہی لگ رہا ہوتا ہے نا ہمیں کہ ہم دین پہ چلیں گے یا اللہ کی احکامات سن کر اس پر عمل کریں گے تو باقی لوگوں سے ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو آپ دیکھیے اصحاب کہف والا جو اگزامپل ہے، اس میں بھی وہ لوگ باقی ساری سوسائٹی سے کٹ کر کیو میں چلے گئے تھے، کہف میں چلے گئے تھے، غار میں چلے گئے تھے. تو کیا غار میں جانے سے ان کا نام ختم ہو گیا؟ کیا وہ دنیا سے پیچھے رہ گئے؟ کیا وہ ان کا نام و نشان مٹ گیا؟ بلکہ آپ دیکھیے کہ جو اس وقت کے خدا بنے ہوئے تھے ان کا نام کوئی جانتا بھی نہیں آج کے دور میں. اور اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ قیامت تک سب کو قرآن کے ذریعے سے پتہ چلتا رہے گا. اس سے پہلے کی جو الہامی کتابیں تھیں ان میں بھی اس کا تذکرہ تھا. سملرلی اب یہ جو واقعہ ہے کہ دو لوگوں کا واقعہ، دو آدمیوں کا واقعہ، اس میں بھی ایمان باللہ، خاص طور سے اللہ پر ایمان، اور اس ایمان کے پھر کچھ تقاضے ہیں، اس کا تذکرہ ہے. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، ہم نے اس کے بیچوں بیچ نہر ایک جو ہے وہ جاری کر دی. یعنی ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی کام جو تم کرتے ہو وہ تم نہیں کرتے بلکہ اللہ کرتا ہے. ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں جب غزوہ احد کا واقعہ سورہ آل عمران میں کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ جب آپ نے ان کی طرف مٹی پھینکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے بلکہ اللہ پھینک رہے. یعنی جتنے بھی ہمیں موقع پر یا جتنے بھی چلی ہم جو ہے وہ ہیلے کرتے ہیں، ترکیبیں لگاتے ہیں، سیانے بنتے ہیں، کوئی حکمت کا کام کرتے ہیں، عقل کا کام کرتے ہیں، وہ عقل، حکمت، وہ جو دانائی، وزڈم، وہ میری اور آپ کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ میری اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہمارے اندر ڈال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، تو ان کے اس باغ میں پھل آیا. فقال لصاحبه،
तो जो एक वो जो काफिर आदमी था उसने अपने साथी से कहा, वह हुआ युहाविरु, उससे जब बातचीत कर रहा था, जैसे मैंने अब तक आपको बताया कि जमीनें इकट्ठी थी, बाग इकट्ठे थे, तो आते जाते सामना होता था चलते फिरते, तो उसके साथ बात कर रहा था और उसको कहा अना अक्सरु मिनका मालन, कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ माल में, व अअज़्ज़ु नफरा, और ज्यादा इज्जत वाला हूँ। नफरा कहते हैं औलाद, नौकर चाकर, फैमिली, बरादरी, ठीक है, यानी मेरे पास लोग ज्यादा है, मेरे मेरे बच्चे ज्यादा हैं, या मेरी जो कैपेसिटी है लोगों के हवाले से वो ज्यादा है। ये उसने जतलाया, वो जो काफिर था साथी, उसने मोमिन को कहा कि मैं तुमसे, वैसे तो तुम्हारा बाग भी मेरे बाग के साथ ही है, और बज़ाहिर तो एक ही तरह का फल आ रहा है, एक ही तरह की इसमें से हमें फायदा और नफा हो रहा है, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा इज्जत वाला हूँ और माल में भी तुमसे ज्यादा हूँ। वदखल जन्नतहू, यानी एक तो उसका ये आप देख लेंगे कसूर था, ठीक है, कि उसने अपने आप को बेहतर कहा, ये अल्लाह को किसी तरह भी पसंद नहीं है। और दूसरा, उसे तकब्बुर किया, दूसरे के सामने उसको जतलाया कि मैं तुमसे ज्यादा माल और इज्जत वाला हूँ। अब तीसरी बात क्या की उसने, कि वदखल जन्नतहू, अपने बाग में दाखिल हुआ, वहुवा ज़ालिमुन लिनफ्सिही, इस हालत में कि अपने आप पर खुद ही जुल्म करने वाला था अपनी बातों से। कौला, क्या बात की उसने, कहने लगा मा अज़ुन्नु अन तबीद हादिही अबदा। अब आप देखिए, हरा भरा खूबसूरत बाग, भरी हुई खेती, हल लगा हुआ है, फसलें पकी हुई हैं, तैयार हैं, तो वो इतना यानी शानो शौकत वाली कैफियत देके उसने कहा मुझे नहीं लगता, मा अज़ुन्नु, मैं गुमान नहीं करता, मुझे नहीं लगता, अन तबीद हादिही अबदा, कि ये बाग कभी भी बर्बाद होगा, कभी भी खत्म होगा, ठीक है। या जैसे आप अपनी जुबान में हम कह लें कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी भी मर्तबे में कम हो जाऊंगा, या मैं अपने जो जिस स्टेटस पे पहुंच गया हूँ मेहनत करके, हम कहते हैं ना, हम मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, आज हम जिस मुकाम पर हैं हम मेहनत करके पहुंचे हैं, ऐसा नहीं होता। मेहनत तो सारे कर रहे हैं, है ना। आप जिस मुकाम पर हैं वो अल्लाह की अता है, वो अल्लाह को क्रेडिट जाता है, मेरे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो जब हम ये सोच रहे होते हैं कि सब कुछ मेरी अकल की वजह से हुआ, ये हो ही नहीं सकता था, अक्सर मैं ये भी बात सुनती हूँ कि ये हो ही नहीं सकता था कि ये काम गलत होता, आखिर किया किसने है मैंने, है ना। ये हो ही नहीं सकता था कि ये वाली जो एग्जाम है इसमें मैं पास ना होती, आखिर मैंने इतनी मेहनत की थी। ये इसी से रिलेट कर ले कि मैं गुमान नहीं करता कि ये बाग कभी भी बर्बाद होगा। अच्छा, दूसरी तरफ ये वाली मिसाल भी, कि मैंने अपनी औलाद पे बड़ी मेहनत की है, मैंने इनको बड़ी तरबियत इनकी की है, बड़ी मुशक्कत से परवरिश की है, तो ये हो ही नहीं सकता कि ये मेरे फर्मा बरदार ना हो। ये हो ही नहीं सकता कि मुझे अल्लाह इनके जरिए से, हम अल्लाह को डाल लेते हैं लेकिन कितनी बड़ी बातें कर जाते हैं, कि ये नहीं हो सकता कि अल्लाह इनके जरिए से मुझे आजमाए, या ये मेरे बच्चे जो हैं ये बुरे रास्ते पे चले। कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। और जब हम ये बात कर रहे होते हैं, असल में शैतान खुश हो रहा होता है। मा अज़ुन्नु अन तबीद हादिही अबदा, मुझे नहीं लगता कि ये बाग कभी बर्बाद होगा। इसीलिए आप देखिए, जवाले नियमत से बचने की दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जवाली निअमतिका व तहव्वुल आफियतिका व फुजाअति निक़मतिका व मिन जमीइ सख़तिक। या अल्लाह, मैं तेरी जिन नेमतें जो तूने मुझे अता की हैं, मैं उनके जवाल से तेरी पनाह में आता हूँ। इसी तरह जो मुझे आफियत तूने अता की है, मैं सेहत में हूँ, मैं अपने घर में हूँ, चार दीवारी में हूँ, अमन में हूँ, ठीक है, यानी ऐसी जगह पे नहीं जहाँ जंग लगी हुई है, ऐसी जगह पे नहीं हूँ जहाँ पे बॉम्ब्स गिर रहे हैं, कैद खाने में नहीं हूँ, तो ये अमन है ना, ठीक है। इसी तरह मेरे पास आज के दिन का जो खाना है वो भी मौजूद है। इसी तरह मैं किसी ऐसी मुसीबत और मुशक्कत में नहीं हूँ, तो ये तेरी वजह से है, तो मैं इस आफियत के बदल जाने से तेरी पनाह में आती हूँ, अचानक आने वाली मुसीबत से तेरी पनाह में आती हूँ। ये दुआएं इसीलिए हमें सिखाई गई, ताकि हम अपने आप को रियलाइज, असल में दुआ जो है ना वो कनेक्शन होता है ना बंदे का अल्लाह के साथ, और एक कन्वर्सेशन होती है, गुफ्तगू होती है दुआ, अदर देन नमाज। और उस दुआ के जरिए से मैं और आप अपने आप को क्या रियलाइज करा रहे होते हैं कि हाँ, कुछ भी मेरे और हमारे हाथ में नहीं है, यानी हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये तो अल्लाह की अता है, ये सारी मेहरबानियां अल्लाह की वजह से हैं। वमा अज़ुन्नु अस्साअता क़ाइमा, और फिर अगला कसूर उस आदमी का, कहने लगा मुझे नहीं लगता कि कयामत भी आएगी कभी। अब ये वाली बात भी आजकल आप बहुत सुनते हैं, ठीक है, कि चलो आ जाएगी कयामत तो देख लेंगे, ठीक है। या फिर अक्सर सोशल मीडिया पे कि कयामत इससे बड़ी क्या होगी, कि जो आजकल हो रहा है। भैया आपको क्या पता कि कयामत की हौलनाकियां क्या हैं, दुनिया की जो तकलीफें हैं और मशक्कतें हैं, ये तो कयामत के
सामने कुछ भी नहीं है। तो या फिर इसने तो मुंह से कह दिया ना, वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमा, कि मुझे नहीं लगता कि क्यामत आएगी। हम मुंह से नहीं कहते कई दफा, लेकिन आमाल हमारे चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते हैं कि हमें नहीं लगता कि हमने दुनिया छोड़ के जाना है। जितनी लंबी हमारी उम्मीदें, आरजुएं, जितनी लंबी प्लानिंग्स हैं, जितनी मेहनत है दुनिया के लिए, क्या वो कहीं से भी इंडिकेट करती है कि हमें लगता है कि हमने दुनिया छोड़ जानी है? कहीं से भी पता चलता है कि मेरे रहन सहन से, उठने बैठने से, प्रेफरेंसेस से, तरजीहात से कहीं से अंदाजा होता है कि कयामत आने वाली है? ठीक है, तो चाहे मुंह से कहें, चाहे आमाल से, चाहे अपने बिहेवियर से, एक ही बात है। वला इर्रुदित्तु इला रब्बी, और अगर यानी बिलफर्ज कयामत आ भी गई और मैं अपने रब की तरफ वापस गया, लअजिदन्ना खैरम मिनहा मुनक़लबा, तो मुझे बड़ा यकीन है कि इससे बेहतर ही अल्लाह मुझे अता करेगा। दुनिया में उसने मुझे अच्छे हाल में रखा, आखिरत में भी अच्छे हाल में रखेगा। ये उसके कुछ कसूर थे, जो उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली। वह हुआ ज़ालिमुल लिनफ्सी, अपने आप पर जुल्म करते हुए। क़ाल लहू साहिबुहु, उसके साथी जो मोमिन था उसने कहा, वह हुआ युहाविरुहु, जबकि वो उससे बातचीत कर रहा था, अकफ़रत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराबिन, क्या तू उस जात का इनकार करता है जिससे तुझे मट्टी से पैदा किया, सुम्मा मिन नुतफ़तिन, फिर नुतफे से, यानी ड्रॉप ऑफ, वो जो स्पर्म ड्रॉप है उससे, सुम्मा सव्वाका रजुला, और फिर तुम्हारी सारी शख्सियत को अल्लाह ने दुरुस्त किया, आदमी बनाया तुम्हें। ठीक है, और आज तुम कहते हो जो कुछ है वो मैंने खुद किया है, जो कुछ कमाया है मैंने अपनी एफर्ट से कमाया है, जो कुछ मुझे मिला है वो मेरी अपनी वजह से है। हालांकि तुम तो मट्टी थे भाई, तुम तो कुछ थे ही नहीं। लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी, ये अलिफ पे जो है ना सर्कल, ये सिर्फ लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। इसको फिर हम लाकिन ना नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लाकिन हुwa अल्लाहु रब्बी, लेकिन वो अल्लाह जो मेरा रब है। वला उश्रिकु बि रब्बी अहदा, वो मोमिन उसको याद दहानी करा रहा है कि मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। और आपको पता है, दो दो जगहों पर ये आयत है, सूरह लुक़मान और सूरह शुरा में, कि उस बंदे के बारे में क्या ख्याल है जिसने अपना आप, अपने यानी अपनी पर्सनालिटी, अपना आप उसने अपना खुदा बना लिया। यानी उसका शिर्क इस टाइप का है कि उसने किसी दूसरे को माबूद नहीं बनाया, बुतों के आगे नहीं सर झुकाया, किसी और को माबूद नहीं बनाया, बल्कि अपने आप को अपना माबूद बना लिया। कैसे? अपनी विश, अपनी डिजायर्स, अपनी पसंद, अपनी नापसंद, ये अहम है ना मेरे और आपके नजदीक। देखिए, हमारे लाइफस्टाइल्स वैसे हैं जैसे हम चाहते हैं, वैसे नहीं है जैसे अल्लाह चाहता है। हमारी लाइक्स डिसलाइक्स जो हम चाहते हैं वो है, वो नहीं है जो अल्लाह चाहता है। ठीक है, तो ये भी शिर्क है। तो यहाँ पर इस चीज की याद दहानी करवा रहा है वो मोमिन जो है काफिर को, कि मैं उस रब पर यकीन करता हूँ जो मेरा रब है, वो अल्लाह जो मेरा रब है, और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, अपने आप को भी नहीं। मैं ये नहीं कहता ये सब कुछ मेरी मेहनत से मिला है। वलौला इज़ दखलत जन्नतक कुल्त मा शाअ अल्लाह, और क्यों नहीं तुम ऐसा करते कि जब तुम अपने बाग में दाखिल हो, कुल्त मा शाअ अल्लाह, तो तुम कहते कि ये सब कुछ वो है जो अल्लाह ने चाहा। यानी जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मुझे मिला है, ये अल्लाह की वजह से मिला है। ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, उसके अलावा तो कोई कुव्वत है ही नहीं, उसके अलावा तो कोई ये सारी तौफीक दे ही नहीं सकता। इन तरानी अना अक़ल्ल मिनका, अगर तू ये देखता है कि मैं तुमसे कम हूँ, माला व वलदा, माल में और औलाद में। ठीक है, यानी अगर तुम्हें ये महसूस होता है कि मैं तुमसे कम हूँ माल और औलाद में, तो तुम बजाय इसके ये कहो कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ या मेरे पास ज्यादा कुछ है। तुम ये क्यों नहीं कहते कि ये तो अल्लाह की मर्जी है? अल्लाह ने जिसे चाहा जिस हालत में रखा, जिसे चाहा जिस तरह से नवाजा। ठीक है, बड़ी बड़े इंपॉर्टेंट मेरी बहनों इसके अंदर से लेसन्स मिल रहे हैं। ठीक है, अक्सर ये शैतान हमारे मुंह से कहलवा देता है ये बातें, तो सोच भी आ जाती है ना कई दफा। देखिए, सोचों पर तो कंट्रोल नहीं है ना, कि हम जी बेहतर हैं, शुक्र अल्लाह का हम बाकियों से बेहतर हैं। हम बेहतर नहीं हैं, अल्लाह की तौफीक से हम बेहतर हालत में हैं, अल्लाह की वजह से। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तो सब पर रहम फरमा। लेकिन अगर तूने मेरे पर रहम फरमाया तो ये तेरा फजल है, एंड नथिंग। हम क्या कर रहे हैं, क्या कौन सी एक्स्ट्रा इबादतें हम कर रहे हैं, कौन से एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ रहे हैं, कौन से एक्स्ट्रा इन्फाक फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं? आम लोगों से भी आम हैं हम। इसके बावजूद अगर महसूस करें किसी वक्त कि अल्लाह की का फजल है, अच्छी हालत में है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कामों के रिजल्ट से मुराद ये है कि आप जिन कामों के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उस पर अल्लाह का शुक्र, और करीब हो जाना अल्लाह के।
अल्लाह के साथ और अटैचमेंट हो जानी है। ना कि आप देखिए कि मोमिन की जो खुशी और उसका दुख दोनों ही एक इंडिकेटर होता है कि जिससे पता चलता है कि अल्लाह के साथ कितना क्लोज है। जब वो खुश होता है तो भी अल्लाह को याद करता है, और जब जब दुख में होता है तब भी अल्लाह को याद करता है। वो जो हदीस है कि मोमिन का मामला अजीब है, अजबल li अम्रिल मोमिन, मोमिन का मामला अजीब है कि जब उसको तकलीफ पहुंचती है वो सब्र करता है तो अल्लाह उसको अजर देता है। जब उसको खुशी पहुंचती है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो उस पर उसके मजीद अजर मिलते हैं उसको, है ना। फासा और अभी तो ये मोमिन उसको, जो मोमिन साथी था वो उसको बता रहा है कि तुमने ये क्यों नहीं कहा कि मैं अगर बेहतर हूं तो अल्लाह की वजह से हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कमतर हूं तुमसे। फासा रब्बी, उम्मीद है ये भी, ये नहीं हो सकता है कि हम मेरा रब अयुतियानी खैरम मिन जन्नतिक, मुझे तुम्हारे इन बागों से ज्यादा बेहतर दे दे, वयुरसिल अलैहा हुस्बानम मिन अस्समा, और ये जिन बागात पे तुम अकड़ रहे हो इन पर अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आ जाए, फतुस्बिह सईदन ज़लक़ा, और ये जो सारे बाग, खेती, फसलें, ये सब साफ चटकील मैदान में तब्दील हो जाए, यानी कुछ भी ना रहे। और युस्बिह माउहा गौरा, या ये जो नहर है दरमियान में जो हमारे खेतों को सैराब कर रही है, हो सकता है इसका पानी गौरा यानी खुश्क हो जाए, खत्म हो जाए। फला तस्ततिअ लहु तलबा, फिर तुम उसे निकालने की, दोबारा तलाश करने की जो है यानी इस्तिताअत ही ना रखो तुम इतनी, यानी कैपेसिटी ना रखो कि दोबारा से वो पानी निकाल सको। जब पानी एक दफा खुश्क हो जाए तो उसको तो कोई नहीं निकाल सकता। वो उहीत बिसमरिही, ये गहरा से मुराद ये है कि ये जमीन के अंदर चला जाए, फिर आप उसको कैसे निकालेंगे। वो उहीत बिसमरिही, और फिर क्या हुआ कि उसका फल घेर लिया गया। फअस्बह युक़ल्लिबु कफ़ैहि, और जब वो सुबह बाग में एंटर हुआ, उससे देखा सारे का सारा बाग जो है उसके ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका हुआ था। यानी वो जो मोमिन साथी था उसको अलर्ट करता रहता था कि अपने कामों से, अपनी बातों से बाज आ जाओ, लेकिन जब वो बाज नहीं आया सारी रिमाइंडर्स के बावजूद, तो अब अल्लाह का अजाब आ गया, उसके गुरूर की वजह से, उसके तकब्बुर की वजह से। फिर वो अपनी दोनों हाथों को मलता रह गया, अला मा अनफका फीहा, जो उसने उस बाग में खर्च किया था, इतनी एनर्जीज, इतना पैसा, इतना टाइम। वही खावियतुन अला उरूशिहा, और वो बाग अपनी छतों के बल गिरा हुआ था, यानी तबाह हुआ हुआ था। वो यकूलु या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, और वो कह रहा था हाय काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराता, हाय काश मैं अपने रब को नाराज ना करता, मैं अपने रब का गजब जो मैंने मोल लिया है वो ना लेता। वलम तकुल लहू फिया, और वो जो जिन लोगों पर, औलाद पर, बेटों पर, अपनी जो पूरी बरादरी पर अकड़ता था, उसके लिए कोई भी उसकी जमात के लोग यंसुरूना हो, मदद करने नहीं आए, मिन दूनिल्लाह, सिवाय अल्लाह के, यानी उसके मदद के लिए जो उसके पास इतनी बड़ी जमात थी, इतना बड़ा कुंबा था, उसमें से कुछ भी नहीं था सिवाय अल्लाह के। वमा कान मुंतसिरा, और ना ही वो किसी से बदला ले सकता था, यानी वो किसको ठहराता अपनी बर्बादी का जिम्मेदार। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक, ये है क्रक्स। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक, यहाँ यानी ये जो सारी बात है, इसका जो समरी है कि सारा इख्तियार लिल्लाहिल हक, अल्लाह ही के लिए है जो सच्चा है। अल्लाह के अलावा किसी का कोई इख्तियार नहीं, कोई कैपेसिटी नहीं, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, कोई किसी के काम नहीं आ सकता, ना औलाद, ना माल, ना अमाल। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही रहेगा, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हुआ खैरुन सवाबन, वो बेहतरीन है बदला देने में, वो खैरुन उक़बा, और बेहतर है अंजाम के एतबार से। यानी अगर सिर्फ अल्लाह ही को बदले के लिए रख लिया जाए, यानी सिर्फ मैं, मुझे बदले में सिर्फ अल्लाह चाहिए, तो वो बेहतरीन बदला है और वो बेहतरीन अंजाम है। अल्लाह खुश हो गया तो सब कुछ मिल गया, और अगर अल्लाह नाराज हो गया, चाहे दुनिया में जितना कुछ भी मिल जाए, इंसान जो है वो बिल्कुल समझने खाली हाथ। तो ये इतनी अहम एग्जाम्पल आप देखिए सूरह कहफ में, तकरीबन हर रुकू में
कोई ना कोई खास टीचिंग्स हैं, खास वाकया है। जैसे शुरू में सूरह कहफ के आप ने असहाबे कहफ का वाकया देखा, उसके बाद हमने वो वाला आयत पढ़ी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह कहना भूल गए थे। उसके बाद आपने यहाँ पर इस रुकू में अब आप देख रहे हैं कि दो लोगों का तज़किरा है। एक वो जो नाशुक्रा था, ठीक है, जो अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल गया था, जिसको अपनी सारी कामयाबी अपनी वजह से लग रही थी। और दूसरी तरफ वो मोमिन बंदा था जो अपनी तमाम कामयाबियों, तमाम चीजों का क्रेडिट अल्लाह को देता था, जिसको सारी उम्मीदें अल्लाह से थी, जिसने अपनी सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो अल्लाह की रजामंदी की सूरत में की हुई थी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसको लोगों पर, बच्चों पर, फैमिली पर, माल पर ट्रस्ट नहीं था, उन पर डिपेंडेंट नहीं था, उन पर उसका भरोसा नहीं था, बल्कि अल्लाह पर था। वदरिब लहुम, अगले रुकू में कौन मिसाल आ रही है, इनके लिए जरा बयान कीजिए मसल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी की मिसाल। इनको बताइए कि दुनिया की जिंदगी कैसी है। कमा इन, ऐसे जैसे पानी, अनजल्नाहु मिनस समा, जो हम आसमान से उतारते हैं। फख्तलत बिही नबातुल अर्द, और वो पानी यानी जमीन में जब उतरता है तो उस पानी के साथ मिलकर जमीन के अंदर से नबातात निकलती हैं। फअस्बह हशीमन, फअस्बह हशीमन तज़रूहु रियाह, और फिर वो नबातात हरी भरी, बिल्कुल यानी अपने जोबन पे जाकर, अपने पीक पे जाकर फिर उनके ऊपर कोई ऐसी बीमारी आ जाती है सम टाइम। कई दफा आप देखिए कि बारिश के टाइम पे नहीं होती, कि आप पका हुआ फल जो है वो उतार नहीं सकते। जैसे अभी पिछले दिनों बहुत ये देखने और पढ़ने में भी आ रहा था और सुनने में भी आया कि जो बेवक्त बारिशें हुई हैं बगैर मौसम के, तो पका हुआ फल खराब हो गया है, और गंदुम की फसलें जो हैं वो भी यानी इफेक्ट हुई हैं। ये है यानी बिल्कुल तैयार रेडी, और फिर चूरा चूरा हो गया। तजरूह रियाह, और उसे हवा इधर उधर बखेरती फिरती है, यानी जिस चीज से इतनी उम्मीद थी कि ये हमें फायदा देगा, उससे उसने कुछ भी फायदा नहीं किया। ठीक है, ये है दुनिया की जिंदगी की मिसाल, कि जिसमें हम इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी एनर्जीज लगाते हैं, इतना अपना आप सारे का सारा झोंक देते हैं इस दुनिया को बनाने के लिए, लेकिन जिस वक्त हमें जरूरत होगी तो वो सारी एफर्ट्स, सारी जो हमारी कोशिशें हैं, सारी चीजें जो है वो बिखर जाएंगी, क्योंकि वो अल्लाह के लिए नहीं थी, दीन के लिए नहीं थी, अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं थी। तो वो हमारे कुछ काम नहीं आएगी। वो हमारी आखिरत में हमारी वो वाली जिंदगी जो हमेशा रहने वाली है उसको बेहतर करने के लिए कुछ काम नहीं आएगी। चाहे वो औलाद है, चाहे हमारा अपना आप है, हमारा करियर है, हर वो चीज जिसको हमने अल्लाह से अलग कर लिया, हर वो चीज जिसमें अल्लाह को नाराज करके हमने दुनिया बनाने की कोशिश की। ठीक है, हम यही कर रहे होते हैं ना, हम समझते हैं कि वक्ती तौर पे चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे, अल्लाह ताला से तौबा कर लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन दुनिया से हम पीछे नहीं रहने चाहिए, है ना, किसी भी सूरत में। हमारे बच्चे, उनकी तालीम, उनकी और हमारा अपना सारा कुछ लिविंग, हमारी अपनी, हमारा करियर, स्टडीज, एवरीथिंग, इसके लिए हम हर कोशिश करने को तैयार हैं, चाहे उससे अल्लाह नाराज हो जाए। बंदों को राजी करने के लिए हम रेडी होते हैं, चाहे खालिक नाराज हो जाए। लेकिन ये सारी मेहनतें जब हम अपना एक्सपेक्ट करेंगे कि ये अब हमें फायदा देंगी, ठीक है, आखिरत में, ये छोटी सी जिंदगी, 60 70 80 साल की जिंदगी गुजार के जब हम वापस जाएंगे और हम अपनी वो जिंदगी जो हमें मेहनत अल्लाह के लिए करने के लिए दी गई थी उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि अब हमें कोई फायदा मिले, तो मिल सकता है फायदा? अल्लाह के लिए किया क्या भाई? कुछ भी नहीं किया। हशीमन तज़रूहु रियाह, और वो सब चूरा चूरा हो जाएगा, बिखर जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुक़तदिरा, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। यानी ये देखिए, इस आयत के आखिर में अल्लाह की कुदरत का जो बयान है ना, मुझे बहुत ये जो है वो सरप्राइज करता है हमेशा, बड़ा यानी एक कह लें कि हिलाता है पकड़ के। हम ये समझते हैं कि हमारी कैपेसिटीज हैं, हमारी मेहनतें हैं, हम मेहनत नहीं करेंगे, या हम ये जो दुनिया की दौड़ है इसके अंदर अंधाधुंध नहीं भागेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसे ही चाहते हैं ना हम। इसी तरह हमारे ये एक माइंड में होता है कि लोग राजी रहने चाहिए, हमारे रिश्ते, हमारे जैसे शौहर, फैमिली, बच्चे, ये खुश रहने चाहिए। ठीक है, उसके लिए बेशक अल्लाह नाराज हो जाए, सोसाइटी में इज्जत होनी चाहिए चाहे अल्लाह नाराज हो जाए। हालांकि हर चीज पे मुख्तदिर जो है, कुदरत रखने वाला, मेरी और आपकी जिंदगी पर, हर कामयाबी पर,
एवरी अचीवमेंट पर, है ना, हर सक्सेस पर कौन कुदरत रखने वाला है? अल्लाह। तो होना तो ये चाहिए ना कि हम अल्लाह को राजी करने की कोशिशें करें उतनी जितनी हम बंदों को राजी करने की कोशिश करते हैं, जितनी हम बंदों के पीछे टाइम वेस्ट करते हैं, जितना हम इस दुनिया के पीछे टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन हम चूंकि समझते हैं कि हम दुनिया के पीछे टाइम वेस्ट करें, एक्चुअली हमें रिटर्न होगा, हमारे काम आएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट है भाई, सेविंग्स है। लेकिन वो सेविंग आप देखिए कैसी सेविंग है कि आज आंखें बंद होंगी तो ना डिग्री साथ जाएंगी, ना करियर साथ जाएगा, ना बच्चे साथ जाएंगे, ये मेहनतों से बनाया हुआ घर प्रॉपर्टी साथ जाएगा, कुछ भी नहीं साथ जाना, खाली हाथ चले जाना है। तो ये कैसी इन्वेस्टमेंट है, कैसी सेविंग्स कर रहे हैं हम? अलमाल वल बनून, माल और बेटे, जीनतुल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी की सजावट है। माल और औलाद, बनून ओवरऑल औलाद को भी कहते हैं, और बनीन जो है ये बेटों का भी, इसका खास तौर पे बेटे भी इसका मानी है। यानी हम दुनिया में ये समझते हैं कि माल और बेटे यानी औलाद ओवरऑल, और बेटों को जाहिर प्रेफरेंस दी जाती है कि ये दुनिया की जिंदगी के लिए बड़े जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर किसी का बेटा नहीं है तो हर कोई जरूर उनको रियलाइज करवाता है ये बात कि अल्लाह ताला बेटा दे देते हैं या होना चाहिए बेटा, है ना? क्यों होना चाहिए? क्योंकि सहारा है, बेटे सहारा होते हैं। तो माल और बेटे ये तो दुनिया की जिंदगी की जीनत है। वल बाकियात सालिहात, और बाकी रहने वाली तो नेकियां हैं। और इसमें उलमा बड़े मजे का इसका तर्जुमा करते हैं, ये ता जो है ना, लंबी ता, ये जो ता, इसको ताए तानीस कहते हैं अरबी जुबान में। ता, ताए तानीस, यानी ये मोअन्नस के लिए, फीमेल्स के लिए ये ता इस्तेमाल होती है। ठीक है, जैसे बनून लड़के हैं ना, तो अगर लड़कियां लड़कियों को का जिक्र करना हो तो बनात आएगा, बनात। ठीक है, आखिर में ये था। तो बाज उलमा इसकी तफसीर करते हैं कि बाकी रहने वाली बेटियां, यानी अगर आप देखें कि बेटियों की पैदाइश पर भी खुशखबरी, रहमत कहा गया उनको। क्यों ये क्यों इस तरह से कहा गया कि जिस मुआशरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए थे वहां पर बेटियों को लेकर बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात लोगों के थे, और बेटियां बाइस शर्म और आर हुआ करती थी लोगों के लिए, जिंदा दफन कर दिया करते थे बेटियों को, है ना? लोगों को बेटियां बोझ लगती थी, आज भी यही हालात हैं। ठीक है, यही है कि बेटियां तो भाई आपने अपने घर नहीं रखनी, वो तो अगले घर चली जाएंगी, और बेटे जैसे आपके हमेशा रहेंगे। कभी देखा है किसी के बेटे हमेशा उनके साथ रहे? हमेशा नहीं। कोई कमाने के लिए निकल जाता है, कोई वैसे अलग हो जाता है। तो एक एक देखिए अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है ना कि बेटियां जो हैं वो आपके साथ नहीं रह सकती, या बेटियां उतना फायदा नहीं दे सकती। तो वल बाकियात सालिहात, ये जो ता है, इससे बाज उलमा बेटियां भी तर्जुमा करते हैं कि बाकी रहने वाली नेकियां, यानी बेटियां जो है उनमें अजर है, उनकी परवरिश में भी अजर है। फिर फरमाया हदीस में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दो बेटियों की परवरिश की अच्छे से, दीन के मुताबिक, फर्क नहीं किया बेटों और बेटियों में, वो कयामत के दिन मेरे साथ होगा। और आपने दो उंगलियां बिल्कुल इकट्ठी, जैसे हम दो बिल्कुल जोड़ के उंगलियां करते हैं ना इकट्ठी खड़ी। और फिर किसी ने सवाल किया, रसूलल्लाह जिसकी तीन है, आपने फरमाया तीन भी, जिनकी तीन बेटियां होंगी और उन्होंने उनकी परवरिश पर मेहनत की। जाहिर है एक सोशल प्रेशर्स होते हैं, हम जिस पे अब आज की दुनिया में आप देखिए कितनी सारी एडवांस हो गई है हर चीज। अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई जेंडर्स का इतना फर्क रहा है, हर कोई इक्वली हर जगह पे काम कर रहा है ना? फायदे के हवाले से बात कर रही हूँ। जो हमें लगता था कि पहले बेटे बहुत फायदा दे सकते हैं, लेकिन अब तो वो बेटियां भी बहुत फायदा दे रही होती हैं, वही काम बेटियां भी कर रही हैं। तो लेकिन इसके बावजूद एक सोशल जो प्रेशर होता है, तो वो आप उसको यानी उस प्रेशर में आके आपने बेटियों के साथ कुछ जुल्म नहीं किया, उनके साथ मोहब्बत और उनके साथ अच्छाई के साथ आप रहे, तो उनके लिए खास तौर पे अजर है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की एक बड़ी खूबसूरत हदीस, उन्होंने वो हदीस सुनिए, रिवायत है कि एक दफा उनके पास एक औरत आई, उसके साथ उसकी दो छोटी छोटी बेटियां थी। तो उन्होंने, हजरत आयशा ने ना, उनके पास खजूरें पड़ी हुई थी, दो खजूरें थी सिर्फ। तो उन्होंने या बाद जगह पे आता है एक खजूर थी, तो उन्होंने उसकी माँ को दे दी, वो जो खातून है उसको दे दी। तो उसने ना वो खजूरें जो है वो आधी आधी करके बेटियों में बांट दी, खुद नहीं खाई, दोनों बेटियों को दे दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा ने ये बात बताई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए, और आपने फरमाया कि जो अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक करता है वो कयामत के दिन मेरे साथ होगा। तो आप देखिए सुभान अल्लाह, इसी तरह नेकियां भी, उनको भी ताए तानीस के साथ जाहिर किया गया है कि बाकी रहने वाली तो नेकियां हैं, ना बेटे हैं ना माल है। नेकियां, आपके अच्छे काम, अच्छाइयाँ, आपकी जो एफर्ट्स अल्लाह के लिए हैं वो बाकी रहेंगी। खैरुन इंदा रब्बिका, जो ज्यादा बेहतर है आपके रब के नजदीक, सवाबन, बदले में, यानी जो हम समझ रहे होते हैं ना रिवॉर्ड मिलेगा हमें माल
और बेटों से हमें अच्छा बदला मिलेगा, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर में हमारे लिए सेविंग है ये, कि एक सेफ साइड है ना। तो फरमाया जा रहा है कि ये जो नेकियां हैं तुम्हारी, वो तुम्हारे रब के नजदीक सवाब में ज्यादा बेहतर है। वो खैरुन अमला, और ज्यादा बेहतर है उम्मीद के एतबार से। अल्लाह अकबर। यानी इनसे उम्मीदें रखो, नेकियों से और बेटियों से। ठीक है, यानी जो अगर इसका तर्जुमा उस तारीफ से करें कि जो उम्मीदें तुम बेटों से लगाते हो, वही तुम, उससे ज्यादा तुम्हें जो अजर देने वाला और बदला देने वाला, उम्मीद के एतबार से ज्यादा बेहतर, वो तुम्हारे नेक अमाल हैं और तुम्हारी बेटियां हैं। वयौम नुसय्यिरुल जिबाल, और जिस दिन हम चलाएंगे पहाड़ों को, नुसय्यिरुल जिबाल यानी पहाड़ चलने लग पड़ेंगे। वतरुल अर्द बारिज़ा, और आप देखेंगे कि जमीन सारी की सारी खुल जाएगी। अल्लाह अकबर। वहशरनाहुम, और हम सारे लोगों को इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, यानी कब्रें फट जाएंगी, हम सारे अपनी कब्रों से निकलकर अल्लाह के सामने इकट्ठे होंगे। फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, और हम किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सब के सब अल्लाह के सामने इकट्ठे होंगे, सबको इकट्ठा होना है। इस बात से कोई escape नहीं है, कोई भी अपने आप को बचा नहीं सकता। वउरिदू अला रब्बिका सफ़ा, और सारे के सारे आपके रब के सामने लाइंस में, सफ़ा कहते हैं यानी कतार बनाते हैं, सफ दर सफ लाइंस में अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। जरा इमेजिन करें कि सारे हम लोग, तमाम इंसानियत, अल्लाह अकबर, सबके सामने, यानी हमारा हिसाब किताब आएगा और सब के सब वहां पर होंगे। लक़द जिअ्तुमूना, अलबत्ता तहकीक तुम आ गए हो हमारे पास। कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, जैसे हमने तुम्हें पहली दफा पैदा किया था, यानी जैसे हमारे पास से तुम गए थे वैसे हमारे पास वापस भी आ गए। बलजाम, ये अल्लाह जी फरमाएंगे, बलजाम तुम, बल्कि तुम्हारा तो ये ख्याल था, तुमने तो ये गुमान किया था इंसान, अल्लन नजअल लकुम मौइदा, कि हमने तुम्हारे लिए कोई भी ये जो कयामत है या वादे का वक्त है ये मुकर्रर नहीं किया हुआ, यानी ऐसा होगा ही नहीं। तुम्हें ये लगता था कि ये वापस पलटना और हिसाब किताब का जो सारा निजाम है ये होगा ही नहीं। ववुदिअल किताब, अल्लाह अकबर, और किताब रख दी जाएगी सबके सामने, यानी रिजल्ट सबके सामने खोल दिए जाएंगे। फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह, और आप देखेंगे कि जो मुजरिम होंगे, गुनाहगार होंगे, वो डर रहे होंगे देखते हुए, वो अपने रिजल्ट को डर डर के देखेंगे। मिम्मा फीह, जो भी उसमें होगा। वयकूलून, और कहेंगे, या वैलतना, हाय अफसोस हम पर, हाय काश, मा लिहादल किताबी, ये कैसी किताब है, हम पर अफसोस है कि हमने इसको समझा नहीं कि ये कैसी किताब है। किताब से मुराद वो जो रिजल्ट कार्ड हमारा जब हम सामने आएगा। अब देखिए, दुनिया में जब अच्छा ना हो पेपर और रिजल्ट आना हो तो इंसान डर डर के ही वो देख रहा होता है ना, और किसी से भी पूछना हो तो डर डर के ही पूछ रहा होता है, कि अंदाजा होता है कि क्या किया हुआ है। इसी तरह मुजरिमीन को वहां खड़े खड़े अंदाजा हो जाएगा, जो गुनाहगार हैं उनको वहां खड़े खड़े पता चल जाएगा कि हमारा क्या हाल होने वाला है। जाहिर है जिंदगी दुनिया की सारी सामने आ गई एक लम्हे में। सारे का सारा जो लाइफ स्पैन था, जितना भी जिंदगी का वक्त था, वो सारे का सारा सामने मूवी चलना शुरू हो जाएगी। और उस वक्त इंसान ये कहेगा कि हाय अफसोस हम पर, ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, कि जिसने किसी छोटी से छोटी चीज को भी नहीं छोड़ा, वला कबीरतन, और ना ही किसी बड़ी चीज को छोड़ा है। यानी अ, छोटी से छोटे गुनाह से लेकर बड़े से बड़े गुनाह तक इसके अंदर मेंशन है। अल्लाह अकबर। यानी हमारी छोटी से छोटी हरकत भी उस किताब के अंदर होगी, और बड़े से बड़ी चीज भी, इल्ला अहसाहा, मगर सब कुछ इस किताब में दर्ज है। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाह हमारा हिसाब आसान फरमाना, और दूसरों के सामने शर्मिंदगियों से और जो जिल्लत है उससे बचा लेना। आमीन। आप सोचिए कि कितना कितना मुश्किल काम होगा, किस कदर ये मुश्किल चीज है कि हम अपने अमाल को खुद जब फेस करेंगे,
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پا لیں گے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا اس کتاب میں لکھا ہوا. چاہے کسی نے اچھا کیا ہے، چھوٹے سے چھوٹی اچھائی بھی مینشن ہوگی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی مینشن ہوگا. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں دنیا سے نہ لے کے جائے کہ ہم سب دنیا کی فکروں میں ہو اور بالکل اگنور کر کے آخرت کو جیسے ہم بیٹھے ہوتے ہیں. یا اللہ ایسی حالت میں ہمیں اپنی دنیا سے نہ لے کر جانا، بلکہ اس حالت میں ہمیں اٹھانا جب ہم ایمان کی بہترین حالت میں ہوں. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارا آخری وقت اس وقت ہو جب تو ہم سے سب سے زیادہ راضی ہو، جب ہم بہت اچھے سے ایمان کے کسی کام میں ہوں، اچھی حالت میں ہوں. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. جس کی کوئی اچھائی ہے وہ وہاں پالے گا، اور جس نے جو کوئی برائی کی ہے وہ بھی مل جائے گا. جیسے سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے برابر بھی کسی نے شر کیا ہے، برائی کی ہے، تو مل جائے گا اس کو اس کا بدلہ. وہ اس کو دیکھے گا، اس کے سامنے آئے گا. اور اگر ذرے برابر بھی نیکی کی ہے وہ بھی سامنے آئے گی. اسی سلسلے میں وہ جو حدیث ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کو جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ میری تو اتنی نیکیاں نہیں ہیں. تو اللہ جی فرمائیں گے کہ کیا لگتا ہے تمہیں تمہاری کیا کیسے اعمال ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے پتا ہے میرے بہت اچھے نیکی کے اعمال نہیں ہیں، کوئی بہت اچھے کام نہیں کیے میں نے اپنی زندگی میں. تو پھر حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس کی نیکیاں لے کر آؤ. تو وہ دیکھے گا کہ پہاڑ ہیں نیکیوں کے. تو حیران ہو جائے گا کہ یا اللہ یہ میرے میرے اعمال ہیں، میری نیکیاں ہیں، یہ جو اتنا بڑا پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. تو آواز آئے گی کہ ہاں یہ تمہاری نیکیاں ہیں. تو یا اللہ مجھے تو پتا ہی نہیں، میں نے تو اتنے نیکی کے کام کیے ہی نہیں تھے. تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں تھیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی. اسی لیے پیاری بہنوں مسلسل دعا مانگنے کا حکم ہے نا. ہم تو تھک جاتے ہیں دعائیں کرنے سے، اور ہم کچھ عرصہ دعا مانگتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کام نہیں ہو رہا، یا جو اللہ کو منظور ہے وہی ہو جائے گا تو ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ جو ہماری ان ایکسپٹیڈ، جن کا ہمیں لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی، وہ وہاں اکٹھی ہو رہی ہیں، سیو ہو رہی ہیں بینک میں. اور اس وقت انسان جو ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ بندہ مومن یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے نیکیوں کی صورت میں یہاں مل جاتی. اسی طرح جو دوسروں کے ساتھ اچھائی کی، جو برتاؤ ہے، اور اس کا ظاہر دنیا میں اس طرح سے بدلہ نہیں ملتا، وہ بھی نیکیوں کی صورت میں وہاں ملے گا. اسی طرح اسی ضمن میں وہ جو حدیث ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بڑا ریلیکس ہوگا کہ اس کی بڑی نیکیاں ہیں، بہت اچھے کام اس نے کیے ہیں. لیکن جب اس کا حساب شروع ہوگا تو لوگوں کو لایا جائے گا، کئی لوگوں کو جن کو اس نے دنیا میں گالیاں دی، برا سلوک کیا، بد زبانی کی، ظلم کیا، غیبت کی، جن کے اوپر آرام سے بات جیسے ہم دنیا میں کر جاتے ہیں نا. ہم دیکھیں کیسے فٹافٹ کسی کے بارے میں بات کر جاتے ہیں. اور اس میں کسی سے مراد جو ہے نا صرف ہمارے آس پاس کے لوگ نہیں ہیں، اس میں ہمارے سارے یہ جو پالیٹیشنز ہیں یہ بھی آتے ہیں. بھائی اللہ کے بندے ہیں سارے، کیوں ایک کو پکڑ کے اس کے خلاف یا ایک کو پکڑ کے اس کے حق میں بولنا شروع کر دیتے ہیں؟ بھائی ہم تو کسی کا باطن نہیں جانتے نا، یہ تو اللہ کے ذمے ہے. باقی جو بھی ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، جو بھی جیسا بھی کر رہا ہے اللہ معاف کرے ان کو، اللہ ہدایت دے. لیکن ہمارے ہاں اس قدر آپ دیکھیے ایکسٹریمزم ہے. ہم انسان جو ہے عجیب ہے، ہم معتدل رہ ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیں یا تو ہم ایک ایج پر ہیں یا پھر دوسری انتہا پر ہے، یا نفرت کی انتہا پر ہے یا محبت کی انتہا پر ہے. ہم مڈل میں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ہمارے لیے جو اچھا ہے پھر چاہے وہ جتنا بھی برا نکلے وہ اچھا ہی رہے گا. اور جو ہمیں ریئلائز ہو گیا کہ برا ہے، پتہ نہیں اس کے کتنے اور اچھے اعمال ہوں گے، ہے نا، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ہے ہی برا. تو یہ وہ سب لوگ، مجھے اس بات سے بڑا خوف آتا ہے کہ ہم چپ کر کے جیسے ہم بالکل بادر ہی نہیں کرتے اور بڑی آسانی سے اپنے جو حکمران ہیں یا جو یہ جو پالیٹیشنز ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہمارا
है ना, हम वो टेलीविजन पे देख रहे होते हैं तो हम उनको गालियां निकाल रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे हम उनको गालियां निकाल रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनके ऊपर ऐसी ऐसी, अल्लाह माफ करे, भी तो कुछ अरसा पहले से ऐसी अजीब सी हवा चली है, एक्यूजेशन एक दूसरे के ऊपर जो हम देखते चले आ रहे हैं, इस कदर बदजुबानी और बद अखलाकी का कल्चर आ गया कुछ अरसे से। तो आप सोचिए कि ये सब क़यामत के दिन भाई सामने आ जाएंगे, क्योंकि लोगों के अमाल तो वो अल्लाह के सामने जवाब दे है ना, मुझे तो नहीं जवाब दे, आपको तो नहीं जवाब दे, तो हम क्यों कह रहे हैं किसी को बुरा? अगर कोई हमारे, यानी ये हम कहते हैं हमारे मुल्क के साथ बुरा कर रहा है, तो सिर्फ क्या मेरे साथ बुरा हो रहा है? सारे मुल्क के साथ हो रहा है। तो उसके लिए हमने कितनी दफा, मैं हमेशा ये कहती हूँ, कितनी दफा हम तहज्जुद में उठ के दुआ मांगते हैं अपने मुल्क के लिए, कितने हमने नफल पढ़ के दुआ मांगी है कभी अपने पाकिस्तान के लिए कि इसको अच्छा नेकी के रास्ते पे लेके चलने वाला कोई हुक्मरान मिल जाए। नहीं, वो वाली एफर्ट है ही नहीं, बस जो धावा बोलने वाली चीजें हैं वो पसंद है हमें। अल्लाह ताला हिदायत दे। तो वो तमाम लोग जिनको हमने बुरा भला कहा, जिनकी गीबत की, इल्जाम लगाए, उनके हवाले से कोई बात की, और गीबत का आपको पता है ना कि गीबत क्या है, कि जिसमें कोई बुराई हो और उसके बारे में बात की जाए, वो गीबत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी में बुराई नहीं है और हम बात करें तो वो गीबत है, नहीं। अगर किसी में बुरा है, कोई बुरा है और हम पीठ पीछे उसके बात कर रहे हैं, दैट इज गीबत भाई, बैक बाइटिंग ये है। अगर किसी में कोई बुराई नहीं है और हम उसके उसके बारे में बात करें, वो तो बहतान है, एक्यूजेशन है, वो तो उससे भी बड़ा जुल्म है और जुर्म है। इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। हम क्यों अपनी मेहनत से, पहले ही चंद नेकियां हैं हमारे पास, क्यों हम अपनी मेहनत से कमाई हुई जो नेकियां हैं और अपने अमाल हैं हम दूसरों को दे दें, और फिर अल्लाह ताला उन सब लोगों को सामने खड़ा करेगा, और इस बंदे की, जिसको लग रहा होगा मेरे बड़े नेक अमाल हैं, इसकी नेकियां उन सबको तकसीम करना शुरू करें, जिसको गालियां दी, जिसको बुरा भला कहा, जिस पे जुल्म किया, जिसके बारे में झूठ बोला, जिस पे गीबत की, बहतान लगाया। अल्लाह अकबर। और फिर एक टाइम आएगा कि नेकियां खत्म हो जाएंगी, लोग अभी होंगे, यानी वो जो बुरे अल्फाज हैं, बुरी चीजें हैं, बुरे काम किए हुए, और फिर हुक्म होगा कि उन तमाम लोगों के गुनाह लेकर इस बंदे को दे दिए जाए, वो जो अपने तई, अपने ख्याल में उसको लग रहा था कि मेरी तो बहुत नेकियां हैं। और इतना खौफ आता है हदीस पढ़ के कि फिर वही जो पहले जन्नत के मुस्तहिकीन में से था अपने अमाल, नेक अमाल की वजह से, इस सारे प्रोसेस के बाद वो जहन्नमियों में से हो जाएगा, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिही व ग़ज़बिही व क़हरिही। तो मेरी प्यारी बहनों, ये इतने खूबसूरत जो मैसेजेस हैं, ये क्यों दिए अल्लाह ने मुझे और आपको, ये क्यों बताए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको, ताकि मुआशरों में इंसानियत कायम रह सके, ताकि मुआशरे जानवरों के मुआशरे ना बने, ताकि हम केयर करते करें बात करते हुए, ताकि हम ख्याल करें अपने गुमान बनाते हुए, ताकि हम अलर्ट रहें अपने अमाल के हवाले से। लेकिन शैतान ने ऐसा पर्दा हमारी आंखों पे डाला है कि हमें अपनी भी फिक्र नहीं, अपनी आखिरत की भी फिक्र नहीं, और दूसरों की भी फिक्र नहीं। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू, और उस वक्त को याद करो जिस वक्त हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, तो उन सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। दोबारा से किस्सा आदम और इब्लीस जो है वो जिक्र किया जा रहा है। क्या न मिनल जिन्न, वो जो इब्लीस था वो फरिश्ता नहीं था, जिन था। अगर फरिश्ता होता तो इनकार नहीं कर सकता था, फरिश्तों को तो चॉइस नहीं है ना, उनको तो उनकी वो फ्रीडम ऑफ विल नहीं है, जो कुछ उनको कहा गया उन्होंने वैसे ही करना है। लेकिन जिन्नों को है, जिन जो है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं बात को, जैसे हमें इख्तियार है ना मानने या ना मानने का। तो इब्लीस जो है वो जिन्नों में से था। फफसका अन अम्रि रब्बिह, उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया, फिर भी तुम उसे यानी शैतान को और उसकी औलाद को अपना दोस्त बनाते हो। यानी ये वो आदम है ये वो इब्लीस है जिसने आदम को सिजदा करने से इनकार किया, जिसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, जिसने कस्में खाई कि मैं इंसान को जहन्नुम की तरफ लेकर जाकर रहूंगा, मैं तुम्हारी ए अल्लाह तेरी जहन्नुम जो है ये भर कर दिखाऊंगा इस आदम की औलाद के साथ। और ये आदम जिसको तूने आज मेरे पे फौकियत दी है, मैं साबित करूंगा कि ये इस काबिल नहीं है। तो इसके बावजूद, और कुरान में कितनी बार देखिए ये जो किस्सा है आदम और इब्लीस है, 7-8 दफा कुरान मजीद में बयान किया गया है। मोस्ट नरेटेड जो वाकयात हैं, ज्यादा जो बयान किया था
उनमें से एक है। अब ये अल्लाह ताला सवाल करे कि इसके बावजूद तुम उसको प्रेफर करते हो, उसकी औलाद को अपना दोस्त बनाते हो, मिन दूनी, मुझे छोड़ के। ठीक है, यानी मुझे छोड़कर तुम शैतान के रास्ते पे चल रहे हो। वहुम लकुम आदु, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। बिअसल ज़ालिमीन बदला, इन जालिमों के लिए कितना बुरा बदला है, नाउज़ुबिल्लाह। मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्द, ये जो इब्लीस और इसके साथी हैं, इनको हमने जमीन और आसमान की पैदाइश के वक्त हाजिर नहीं किया था, यानी ये दुनिया की पैदाइश के वक्त तो मौजूद नहीं थे। वला खल्क़ अनफुसिहिम, ना इनकी अपनी पैदाइश के वक्त, यानी इनमें से किसी का भी किसी चीज में कोई अमल दखल नहीं है। वमा कुन्तु मुत्तखिदल मुदिल्लीन अज़ुदा, और ना ही मैं इस तरह के गुमराहों को अपना मददगार बना सकता हूँ। इसके बावजूद तुम शैतान को, तुम अपनी मदद उससे मांगते हो, शैतान के पीछे चलते हो। वयौम यक़ूलु नादू शुरकाई अल्लज़ीना ज़अमतुम, और उस दिन, कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, जरा बुलाओ अपने शरीकों को जिनको तुमने मेरे साथ शरीक किया, जिनके बारे में तुम्हें लगता था कि ये हमारी मदद करेंगे, हमारी दुआएं सुनते हैं, हमारी मुश्किलें दूर करते हैं, अल्लाह के अलावा ये भी हमारे मामलात सुधार सकते हैं, जरा बुलाओ उनको। फदअऊहुम, तो लोग उनको पुकारेंगे। फलम यस्तजीबू लहुम, तो उनको कोई आवाज नहीं आएगी। यानी जिनको दुनिया में हमने अल्लाह के अलावा अथॉरिटेटिव समझा, ये समझा कि ये हमारे मसाइल हल कर सकते हैं, कयामत के दिन उनको हम बुलाएंगे और वो जवाब नहीं देंगे। वजअलना बैनहुम मौबिका, और हम इन लोगों के दरमियान हलाकत की जगह डाल देंगे, जहन्नुम। ठीक है, जिन्होंने अल्लाह के साथ शरीक ठहराए, अल्लाह के साथ यानी अल्लाह को भी मानते हैं और फिर उसके साथ एसोसिएशन भी है लोग की। यानी अल्लाह तो है ही है, उसके साथ जी फुला जो है वो दुआएं भी सुन सकते हैं, हमारे मसले भी दूर कर सकते हैं, ये है शरीक, शिर्क जो है। वर अल मुजरिमून, और मुजरिम जो है गुनाहगार देखेंगे अन्नार, आग को, फज़न्नु अन्नहुम वाक़िऊहा, और वो ये समझ लेंगे कि अब वो इस पे गिरने ही वाले हैं। वलम यजिदु अन्हा मसरिफा, और उनको उस जहन्नुम से निकलने की और दूर जाने की कोई सूरत नजर नहीं आएगी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या अल्लाह हम सबको आग से बचा लेना। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन लिन्नासि मिन कुल्लि मसल, और अलबत्ता तहकीक हमने बार बार बयान की है, फेर फेर कर, बदल बदल कर अल्फाज, इस कुरान मजीद में लोगों के लिए मुख्तलिफ मिसालें, एग्जाम्पल्स। वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला, और इंसान तो है ही झगड़ालू, हर चीज में बहस करने वाला, झगड़ा करने वाला। वमा मनअन्नास, और नहीं रोका लोगों को, अयुमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा, कि वो, यानी किस चीज ने इनको रोका है इन लोगों को कि वो ईमान ले आए जब उनके पास हिदायत आ गई। वयस्तगफिरू रब्बहुम, और अपने रब से बख्शिश मांगे। इल्ला तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन, मगर ये कि उनके पास पहलों का कोई मामला आ जाए, यानी वो कहते हैं कि हमारी तो भाई फैमिली ट्रेडिशंस हैं, हमारे तो फैमिली ये रिचुअल्स हैं, हमारे यहाँ तो ये रिवाज हैं जी, माँ बाप दादा हमारे ये कुछ करते आ रहे हैं। अब देखिए यानी ये कितना एग्जैक्ट हमारी सिचुएशन पे बैठ रहा है कि जब हमें कोई बात समझ भी आती है कुरान और हदीस से, अकीदे के खास तौर पर, तो हम उसको क्यों अमल नहीं करते, कि हमें लगता है हमारे माँ बाप जो कर रहे थे क्या वो गलत कर रहे थे, हमारे जो फोर फादर्स करते चले आ रहे हैं, हमारी तो फैमिली में ये सारा कुछ चला आ रहा है, क्या ये सब गलत है। यानी पहलों का तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुन्नतुल अव्वलीन, पहलों का जो, हमसे पहले जो लोग हैं, यानी माँ बाप, बाप दादा, फोर फादर्स, या फैमिली, सोसाइटी, इनके ट्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। औ यअतियहुमुल अज़ाबु क़ुबुला, या उनके पास सामने से अजाब आ जाए, यानी दो सूरतें हैं, या तो वो पिछले लोगों के तरीके नहीं छोड़ते, या उस वक्त छोड़ेंगे जब उनके सामने से अजाब आएगा। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, और हमने रसूलों को जो भेजा, यानी हमने, वमा नुरसिलुल मुरसलीन, कि नहीं हमने भेजा रसूलों को, यानी ताकीद के अंदाज में, इल्ला मुबश्शिरीन, मगर खुशखबरियां देने वाला बनाकर, व मुनजिरीन, और अलर्ट करने वाला बनाकर, डराने वाला बनाकर। व युजादिलुल लज़ीना कफरू, यानी जितने हमने अपने मैसेंजर्स भेजे थे, कि इसीलिए तो भेजे हैं कि लोगों को बताएं कि अगर तुमने मान लिया तो तुम लोगों के लिए ग्लैड टाइडिंग्स हैं, खुशखबरियां हैं, और अगर ना माना तो तुम्हारे लिए
दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब और जिल्लतें हैं। वयुजादिलुल्लज़ीन कफरू बिल और लोग फिर भी झगड़ते रहे, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, बिल बातिल, बातिल एविडेंसेस के साथ, झूठ के साथ, लियुदहिदू बिहिल हक, ताकि वो इस बातिल के साथ हक को फिसला दें। वत्तखजू आयाती, और उन्होंने मेरी आयात को, वमा उनजिरू, और जिस भी मैसेज के साथ उनको डराया गया था, हुजुआ, उसको मजाक समझा, मजाक बना लिया। वमन अजलमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिह, और कौन उससे बड़ा जालिम है कि जिसके सामने उसके रब की आयत आई, उसको नसीहत की गई उसके रब की आयत के साथ, फ़अअरज़ अन्हा, फिर भी उसने उनको इग्नोर किया। अल्लाह, फ़अअरज़ अन्हा, फिर भी उसने उनको लाइट लिया, भूल गया, वनसिया, भूल गया उनको। फ़अअरज़ अन्हा वनसिया मा क़द्दमत यदाह, यानी उन आयत को सुनने के बावजूद नसीहत नहीं ली, उसको इग्नोर कर दिया, और भूल गया कि जो वो अपने हाथों से आगे भेज रहा है। इन्ना जअलना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, बेशक हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं, अन यफ़क़हूहु, कि वो इस कुरान को समझें। यानी वो लोग जो सीरियस नहीं लेते अल्लाह के इन आयात को, मैसेजेस को, फिर उनको कुरान की समझ आना बंद हो जाती है, फिर उनके कानों पे पर्दे आ जाते हैं, उनके सामने बेशक कुरान जिक्र भी हो रहा हो, उनके दिलों पर असर नहीं होता। वफी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके कानों में बोझ है। ठीक है, यानी उनको कुछ समझ नहीं आता कि ये जो अल्लाह ने आयात उतारी हैं, अहदीस हैं, ये मेरे और आपके लिए हैं, इसमें से हमारे लिए क्या, हमने अपने लिए पॉइंट्स लेने हैं, क्या मैसेजेस हैं। व इन तदउहुम इलल हुदा, अगर आप उन्हें हिदायत के रास्ते की तरफ बुलाएंगे, फलन यहतदू इज़न अबदा, वो फिर भी हरगिज हिदायत नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने आरद अन्हा, एराद किया, शौक, मोहब्बत खत्म हो गई। तो फिर बेशक आप उनको बुलाते भी रहे, वो हिदायत नहीं पाएंगे। वरब्बुकल गफूर ज़ुर रहमा, और आपका रब तो बहुत बख्शने वाला, बार बार माफ करने वाला, रहमत वाला है। लौ युआखिज़ुहुम बिमा कसबू, अगर युआखिज़ुहुम, वो पकड़ ले लोगों को, बिमा कसबू, उनके कामों की वजह से, लअज्जल लहुमुल अज़ाब, तो इन पर तो सब जल्दी अजाब आ जाए। लेकिन अल्लाह पकड़ता नहीं है फौरन से। बल्लहुम मौइद, बल्कि अल्लाह ने सबके लिए एक वक्त मुकर्रर किया है, हर किसी को ढील दी हुई है। लन यजिदू मिन दूनिही मौइला, और फिर वो अल्लाह के अलावा कोई पनाहगाह नहीं पाएंगे। आ जाके तो अल्लाह के पास ही जाना है ना, जो मर्जी कर लें दुनिया में, मनमानियां कर लें। वतिलकल कुरा, और ये बस्तियां जो पहले थी तुमसे, अहलकनाहुम, हमने उनको हलाक किया था, लम्मा ज़लमू, जब उन्होंने जुल्म किया। यानी ये तुम्हारे सामने कितनी एग्जाम्पल्स हैं तुमसे पहले लोगों की। वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा, और हमने उनकी हलाकत का एक वक्त जो है मुकर्रर किया, और उस वादे को पूरा किया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिही व गज़बिही व कहरिही, कितनी सारी मिसालों से अल्लाह ताला बार बार अल्फाज बदल के, एग्जाम्पल्स बदल के मुझे और आपको समझाते हैं। और बार बार कुरान को इसीलिए तो आप देखिए जिक्र कहा गया ना, कुरान का एक नाम है जिक्र, यानी रिमाइंडर। जिक्र का मतलब होता है रिमाइंडर, बार बार रिमाइंड करवाता है, बार बार पकड़ के वापस लेकर आता है। इसीलिए तो इसके साथ लाइफ लॉन्ग जो है वो हमारा कांटेक्ट होना चाहिए ना, अपनी आखिरी सांसों तक, हर वक्त हमें कुरान के साथ जुड़ना है, हर लम्हा कुरान से हिदायत लेनी है। क्योंकि अगर कुरान को छोड़ दिया तो लन यजिदू मिन दूनिही मौइला, फिर कोई पनाहगाह नहीं है, तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अल्लाह ताला हमें इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल कहफ सही मानों में रिमाइंडर है, इसीलिए तो आप देखिए कि बार बार पढ़ने की तलकीन है। और आगे चल के मजीद जो आप देखिए कि इसके अंदर वाकयात और आयात जो हैं कि ऐसी हैं कि आप के लिए रिमाइंडर है। इसीलिए आप देखिए कि जब कहा जाता है ना कि आप जुमा के जुमे इसको पढ़ें, या इसको रोजाना इसकी कम से कम शुरू की 10 और आखिरी 10 आयात पढ़ लें, असल में तो इन मौजुआत की तरफ, इन मैसेजेस की तरफ हमारी तवज्जो डाइवर्ट करवाना मकसद होती है। असल में तो मकसद ये नहीं होता कि हम वो जबानी पढ़ के और बंद करके रखते हैं। ठीक है, गर्चे उसका भी असर होगा इंशाल्लाह, लेकिन एसेंस जो है इसके, रियल एसेंस या असल मकसद, इस सूरत को बार बार हदीस में भी जो आया है, फिर बार बार पढ़ने का जो हुक्म है, वो इसके अहकामात हैं। इसके अंदर जो अलर्ट्स हमें बताए गए हैं, जारी किए गए हैं कि बाज आ जाओ, संभल जाओ,
اپنے آپ کو درست کر لو. فتنہ ایمان اور فتنہ مال. ابھی اس کے اندر دو طرح کی آزمائشوں کا ذکر آج ہم جو سبق لیا اس کے اندر آزمائش مال کے ذریعے سے تھی. اس سے پہلے اصحاب کہف کے واقعے میں آزمائش ایمان کے ذریعے تھی. آگے چل کے انشاءاللہ فتنہ علم پڑھیں گے ہم کہ علم کیسے آزمائش بنتا ہے. اور پھر آخر میں فتنہ منصب، یعنی اگر حکومت ملتی ہے تو وہ کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے. چار طرح کی آزمائشوں کا اس صورت میں ذکر ہے. آئی ہوپ کہ آپ پچھلا بھی جو سبق ہے اس سے بھی ضرور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے. وما علینا الا البلاغ.